Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to discuss types of co-curricular activities. The video is meant for 12th class education students. Dear students, in our previous video, we discussed what are co-curricular activities. And in that very video, I cleared the concept that co-curricular activities are actually the non-academic activities which an institute organizes in order to lead the all-round development of the students. I mean, for the all-round development of the students, co-curricular activities have a significant role. It's not possible for an institute to achieve the all-round development of the students in just within the four walls of the classroom. बच्चे का जो all-round development है, they can't take place within the four walls of the school. Classroom. You have to take out the child. You have to explore the child. अपने बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है. एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपने बच्चे को डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराना है. आप बच्चे को नॉलेज दे सकते हो. जो नॉलेज एम ऑफ एजुकेशन है वो तो आप क्लासरूम के अंदर फुलफिल कर सकते हो. वो तो आप विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम थ्रू योर लेक्चर्स, थ्रू योर डेमोन्स्ट्रेशंस, दैट कैन बी अचीव्ड द एम. But you need the all-round development of the child. You need the social development of the child. You need the physical development of the child. You need the moral development of the child. You need the aesthetic and cultural development of the child. And for that very purpose, you have to give co-curricular activities to your child. So far as co-curricular activities are concerned, there are different activities in which we can involve our students, and on the basis of their organization, on the basis of their role, co-curricular activities have been classified into physical co-curricular activities, physical co-curricular activities. Number 2, cultural and aesthetic co-curricular activities. Then number 3, literary co-curricular activities. And number 4, social co-curricular activities. को-करिकुलर एक्टिविटी जो है इनको 4 टाइप्स में, 4 क्लासेस में कैटेगोराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है. जो पहला टाइप है दैट इज़ फिजिकल को-करिकुलर एक्टिविटीज़, देन cultural and aesthetic co-curricular activities, then there are some activities which are called literary co-curricular activities and social co-curricular activities. इसके अलावा भी कई सारी co-curricular activities हैं, but so far as your syllabus is concerned, we have to discuss these 4 types of co-curricular activities. Now let's take physical co-curricular activities. कोई भी वो एक्टिविटी विच हेल्प्स इन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जिससे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो जाए. यानी जो बच्चे के अंदर सरप्लस एनर्जी है, वी हैव टू यूटिलाइज दैट एनर्जी इन अ प्रॉपर वे.
बच्चे में जो एडोलसेंट होता है या जो चाइल्ड होता है, ही हैज़ ए लॉट ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को वी हैव टू यूटिलाइज दैट इन अ प्रॉपर वे। उसके लिए यानी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, मस्क्यूलर डेवलपमेंट के लिए, बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हम स्कूल के अंदर बच्चे को देते हैं उनको कहते हैं फिजिकल को करिकुलर एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, हम बच्चे को डिफरेंट गेम्स में इन्वॉल्व कराते हैं, हम बच्चे को मैथ्स ड्रिल देते हैं, हम बच्चे को एनसीसी में इन्वॉल्व कराते हैं, हम बच्चे को स्काउटिंग में इन्वॉल्व कराते हैं। ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें जो बच्चे की मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, और उन ही एक्टिविटीज़ को हम फिजिकल को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। यानी द एक्टिविटीज़ where the muscles of the child are involved, where the child is involved into different activities which give exercise to his muscles and bones। तो इसमें गेम्स आएंगे, इसमें स्पोर्ट्स आएंगे, एथलेटिक्स आएगा, मैथ्स ड्रिल, एनसीसी, स्काउटिंग। दीज आर द डिफरेंट फिजिकल को करिकुलर एक्टिविटीज। तो कल को जाके आपको एग्जाम में आ सकता है नेम 2 फिजिकल को करिकुलर एक्टिविटीज। तो आप गेम्स लिख सकते हैं, आप मैथ्स ड्रिल लिख सकते हैं, आप एनसीसी लिख सकते हैं, आप स्काउटिंग लिख सकते हैं। सो डोंट कंफ्यूज इट विद अदर एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज जिससे आपके मसल्स और बोन स्ट्रांग होते हैं, उन एक्टिविटीज को फिजिकल को करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं। देन एस्थेटिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जिनसे हम अपने पास्ट के बारे में सीखेंगे, अपने कल्चर के बारे में सीखेंगे, अपने वैल्यूज़ के बारे में सीखेंगे, अपने इथिक्स के बारे में सीखेंगे, मॉरल्स के बारे में सीखेंगे, अपने हैबिट्स के बारे में सीखेंगे, और ये सीखेंगे व्हाट इज़ आर्ट, व्हाट इज़ ब्यूटी। हम अप्रिशिएट करेंगे किसी ब्यूटीफुल चीज़ को, किसी के टैलेंट को अप्रिशिएट करेंगे, किसी के आर्ट को अप्रिशिएट करेंगे, किसी की पेंटिंग को अप्रिशिएट करेंगे। उन एक्टिविटीज़ को जिसमें हम अपने कल्चर के बारे में सीखेंगे, अपने पास्ट के बारे में सीखेंगे, अपने वैल्यूज़ के बारे में सीखेंगे, अपने रहन सहन का वे ऑफ लिविंग जो है उसके बारे में सीखेंगे। उन एक्टिविटीज़ को कल्चरल एंड एस्थेटिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसमें कल्चरल और एस्थेटिक एक्टिविटीज़ में जो है, इसमें आपकी फोक एक्टिविटीज़ आएगी। फोक एक्टिविटीज़ यानी इसमें जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ हैं, हम कश्मीर में कहते हैं रोफ जो है, बांड पत्थर जो है, दोज आर द फोक एक्टिविटीज़, ड्रामाज। उन चीज़ों को हम कल्चरल और एस्थेटिक एक्टिविटीज़ में कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी फोक एक्टिविटीज़ या सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स जो है वो भी फोक एक्टिविटीज़ में आएगा। देन लिटरेरी को करिकुलर एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़, द एक्टिविटीज़ विच विल डेवलप द हैबिट ऑफ, जिससे हमें वो पढ़ने की कला पैदा हो जाए, यानी हैबिट ऑफ रीडिंग या स्किल ऑफ रीडिंग, यानी बुक रीडिंग, जिसमें हम मतलब जिसको हम कहते हैं ना वो लिटरेरी टेस्ट, जिससे हमें लिटरेरी टेस्ट पैदा हो जाए, उन एक्टिविटीज़ को लिटरेरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। यानी ये भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं जिससे हमें पढ़ने की आदत, किताबें पढ़ने की आदत पैदा हो जाए। उन एक्टिविटीज़ को लिटरेरी एक्टिविटी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। सपोज एक बच्चे को डिबेट में हिस्सा लेना है, तो डिबेट में हिस्सा लेने के लिए उस बच्चे को he has to google the things, he has to consult books, he has to consult journals। यानी उसको पढ़ने की ज़रूरत है। रीडिंग स्किल हम जिसको कहते हैं, उसमें रीडिंग स्किल आएगा, पढ़ने या रीडिंग हैबिट, बुक रीडिंग का जो हैबिट है वो पैदा हो जाएगा। बच्चे को डिस्कशन में इन्वॉल्व होना है, तो इसके लिए बच्चे को ही हैज़ टू कंसल्ट बुक्स, या स्कूल मैगजीन जो है, स्कूल मैगजीन, बच्चे को स्कूल मैगजीन के लिए लिखना है, तो वो लिखने के लिए, कुछ लिखने के लिए पहले उसको कुछ पढ़ना है। जब वो पढ़ेगा तो उसमें पढ़ने की आदत पैदा हो जाएगी। या जब वो स्कूल का मैगजीन पढ़ेगा
या वो लाइब्रेरी में जाएगा तो लाइब्रेरी में बैठ के जब वो किताबें पढ़ेगा तो उसमें किताबें पढ़ने की आदत पैदा हो जाएगी। उसको हम लिटरेरी टेस्ट यानी पढ़ने में, किताबें पढ़ने में उसको मज़ा आएगा। उन एक्टिविटीज़ को जिनसे इंसान को पढ़ने में मज़ा आएगा, स्टडी हैबिट्स पैदा हो जाएंगे, पढ़ने के हैबिट्स पैदा हो जाएंगे, रीडिंग स्किल्स पैदा हो जाएंगे। उन एक्टिविटीज़ को लिटरेरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। यानी डिबेट, जब आप बच्चे को डिबेट में इन्वॉल्व करोगे तो बच्चे को इसके लिए पढ़ना है, ही हैज़ टू कंसल्ट बुक्स। डिस्कशन में इन्वॉल्व आप करोगे तो बच्चे को ही हैज़ टू कंसल्ट बुक्स। स्कूल मैगजीन के लिए उसको लिखना है या खुद वो स्कूल मैगजीन पढ़ेगा तो ही हैज़ टू कंसल्ट बुक्स, वो पढ़ेगा कुछ ना कुछ। इसी तरह लाइब्रेरी वर्क, लाइब्रेरी में जाके बच्चा पढ़ेगा, जब वो लाइब्रेरी में बैठेगा तो कुछ ना कुछ पढ़ेगा, मीन्स उसमें पढ़ने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। और इन सारी एक्टिविटीज़ को जिनसे स्टडी हैबिट्स बच्चे में पैदा हो जाते हैं, दोज आर क्लासिफाइड इनटू लिटरेरी को करिकुलर एक्टिविटीज़। उसके बाद सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज़। एज वी ऑल आर अवेयर, जो ह्यूमन बीइंग है ही इज़ सोशल बाय नेचर। बच्चा जो है या मैन जो है ही इज़ सोशल बाय नेचर। बच्चा तभी एडजस्ट होगा अपने साथ, दूसरों के साथ, जब व्हेन ही लर्न्स टू लिव विद सोसाइटी। तो सोसाइटी में रहने के लिए एक बच्चे में सोशल क्वालिटीज़ पैदा होनी चाहिए। ही हैज़ टू इंटरेक्ट विद अदर्स, he has to cooperate with others, and all those activities which help an individual, which help a student to develop social qualities, जिसमें बच्चे को दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरे के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। उन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज़। सपोज हम सिंपली स्कूल की मॉर्निंग असेंबली लेंगे, मॉर्निंग असेंबली। तो ये मॉर्निंग असेंबली तभी पॉसिबल है व्हेन यू वर्क टुगेदर, टीचर, स्टूडेंट्स, डिफरेंट क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं दे वर्क टुगेदर, दे कम टुगेदर। तो इसमें बच्चे में सोशल इंटरेक्शन पैदा हो जाती है। और इस एक्टिविटी को, मॉर्निंग असेंबली को, इसी तरह फील्ड ट्रिप्स, और वी कैन से फील्ड विजिट्स, वी कैन से एक्सकर्शंस, Red Cross, all these activities involve social interaction। यानी आपको दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। You can't do these activities alone। आप इंडिविजुअली ये एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। मॉर्निंग असेंबली कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, यू हैव टू इंटरेक्ट विद अदर्स। फील्ड ट्रिप आप इंडिविजुअली नहीं करोगे। एक्सकर्शन के लिए यूजुअली आप इंडिविजुअली नहीं जाओगे। रेड क्रॉस आप तो इंडिविजुअली नहीं करोगे, आपको दूसरों के साथ इंटरेक्शन करनी है। रेड क्रॉस के लिए जब आप फंड जमा करोगे, आपने किसी न किसी के साथ बात करनी है, अपनी सोसाइटी में जाना है, और वो एक्टिविटी जिससे आप सीखेंगे दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना, उन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज़। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ विच हैव बीन इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। तो आपको कल को जाके ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, नेम 2 सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सोशल एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी जिससे बच्चा दूसरे के साथ इंटरेक्शन करे। तो डिबेट तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि डिबेट भी दो दैट इज़, अगर हम इन द लॉन्ग रन देखेंगे, दैट हैज़ आल्सो सोशल ट्रेट्स इन इट। लेकिन मोस्टली मॉर्निंग असेंबली के लिए यू हैव डायरेक्ट सोशल इंटरेक्शन। डिबेट इट इज़ मोर लिटरेरी एक्टिविटी, क्योंकि पहले तो इसके लिए आपको पढ़ना है, यू हैव टू कंसल्ट बुक्स, सो इट इज़ अ लिटरेरी एक्टिविटी। डिस्कशन दो ये सोशल एक्टिविटी भी है, लेकिन पहले ये लिटरेरी एक्टिविटी है। फॉक एक्टिविटीज़ अगर जो सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं, लेकिन पहले कल्चरल एक्टिविटी है। डिबेट पहले लिटरेरी एक्टिविटी है, फिर इसमें सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज़ के भी ट्रेट्स हैं। तो यू डोंट हैव टू कन्फ्यूज़ इन दीज एक्टिविटीज़। जब हम एग्ज़ाम में पेपर्स देखते हैं, चेक करते हैं, तो बच्चे लिटरेरी एक्टिविटीज़ में फोक एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं।
फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फिजिकल एक्टिविटीज़ जिसमें हमारा फिजिक इन्वॉल्व, कल्चरल एक्टिविटीज़ जिसमें हम अपने हैबिट्स के बारे में, वे ऑफ लिविंग के बारे में, अपने पास्ट के बारे में सीखेंगे, आर्ट एस्थेटिक्स के बारे में सीखें, लिटरेरी एक्टिविटीज जिससे लिटरेरी टेस्ट पैदा हो जाएगा, पढ़ने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, स्टडी हैबिट्स पैदा हो जाएंगे, सोशल एक्टिविटीज़ जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगे जहाँ दूसरों के साथ इंटरेक्शन करनी ज़रूरी होगी, उन एक्टिविटीज़ को सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। आई होप विल गेट थ्रू दीज टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा, कोई प्रॉब्लम रहेगी, डोंट हेजिटेट, you just go to comment box, write your problem, write your difficulty. I'll be there to reply to you. Thank you. Thanks a lot.